Hello and welcome class 11th with another video. In the previous video I have talked about projection from an angle with the horizontal. Now we're going to solve some questions based on that. So all the things that we have learned we are going to apply in this module. Question is right in front of you. What it is saying that a cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second. Okay, in the direction 30 degree above the horizontal means projection कैसा horizontal से 30 degree angle बना के cricket ball को फेंका गया. We have to calculate the maximum height that a ball can achieve in its path. Obviously maximum height हमें निकालना है. Second thing is the time taken by the ball to return at the same level. Like when we are talking about time, we have to just use the vertical वाला सब कुछ, and the horizontal distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level means it is saying to calculate the range. Okay, basically the range it is saying. So for maximum height we have expression. For maximum height we use capital H and its expression is, अगर आपको याद होगा पिछली वाली क्लास में, it is u square, ठीक है, where u is initial velocity. Okay, u का square sin square theta okay, upon sin square theta upon 2g upon 2, where g is acceleration due to gravity. Now we have all the values. We just have to put the numeric values in the expression. Like u is initial velocity, that is 28 meter per second. So it means 28 ka square. Okay, 28 ki power 2. This symbol is symbolizes power. Okay, don't confuse with that. It is power and sine square 30 degree. What is sine 30? Sine 30 is 1 by 2. And what is 1 by 2 ka square is 1 by 4. So I am directly writing this. Don't get कि कहाँ से आ गया ये. Now upon 2g, 1 upon 4 it is now. So I should 1 upon 4, I should convert it into decimal or something. Let's just write 1 upon 4 only. 1 upon 4 means 0.25 now. It's 0.25, right? Okay, now we have, मैं इसलिए नहीं इसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज दो अपॉन हो जाता है ना, तो कंफ्यूजिंग हो जाता है लिखने के लिए आप लोगों को. ओके, 2 इंटू जी को हम 10 ले लेते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. बट 9.8 लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला. ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट, दैट इज coming to be 10 meters. It is quite simple. Now first thing we have calculated the A part of the question. Now we will move on to B part. What is B part? B part is asking about the time. So we have to basically tell the time of flight basically. So what is the expression for that? It is 2u sine theta upon g. Since we know that for time we only need to use all the vertical wala cheez, like velocity is also vertical and this and all. So yeah, so it is 2u sine theta upon g, and what is 2 multiplied by sine 30, that is 1 by 2. So it will get cancelled out ultimately. Okay, to sine theta into 2, that is 1 by 2. So it all cancel out. तो मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ. बचेगा क्या ऊपर? सिर्फ और सिर्फ u, and u is 28 divided by upon g, that is 9.8. तो कितना आ जाएगा ये हमारा? 9.8 into, I think it will be 2.9 something. So 2.9 and unit will be seconds, right? Okay, now moving on to the third part of the question, and
in this we have to calculate the range, that is capital R, and that is given by range का हमारा फॉर्मूला होता है u square sin 2 theta. It is u square sin 2 theta upon g. Okay, upon g. So this will become u square, that is 28 का square, and sin 2 theta means sin 2 into 30, that is sin 60, and sin 60 is root 3 by 2. So I am writing root, I cannot write like root 3 upon 2. आप लोग अपने कॉपी में don't write root word means root 3, simply have to put a sign of root. Okay, so let us where 2 and whole upon 9.8. Is it clear? So let's put this all in the bracket and we have this. तो इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा that will be equal to 69.3 meters. 69.3 meters. Okay, this is the rate. So this was the question of your textbook, and it is a very simple basic question, only formula based. So first question is like that only. Next on we'll try to solve some complicated questions. So let's proceed further. So आपके सामने क्वेश्चन दिख ही रहा होगा. As you can see, it is saying that a boy stands at 39.2 meter from a building. यानी कि एक बिल्डिंग से 39.2 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है और उसने एक बॉल फेंका उस बिल्डिंग की तरफ. ठीक है, ऐसा फेंका कि वो जो बॉल है ना वो पास हो गई उसी बिल्डिंग के एक विंडो से, जो कि कितने ऊपर थी विंडो वो वाली, 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड. ओके, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. समझ आ रही है बात? पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं. ठीक है, हम डायग्राम समझ लेते हैं. देखो क्या कह रहा है, इतना सही हमारा क्वेश्चन है. ओके, एक लड़का यहाँ पे कहीं खड़ा होगा. मैं पहले ग्राउंड बना देता हूँ. सपोज ये हमारा ग्राउंड है. ओके, और मैं एक बिल्डिंग बना देता हूँ. ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है. क्लियर है? बिल्डिंग की यहाँ पे एक विंडो होगी जिससे कि बॉल पास होकर के जा रही है. कभी भी ऐसा केस है और हमारी जो बॉल है वो ऐसे प्रोजेक्ट हुई. ठीक, इस तरीके से प्रोजेक्ट हुई और ये अल्टीमेटली यहाँ पे गई. एक कोई विंडो होगी जो कि 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड थी, और यहाँ से हमारा जो बॉल है वो यहाँ कहीं आ गया होगा. चलो, हमें अभी तक क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दी हुई है. कितनी दी हुई है? It is 39.2 meters. Okay, this much meter it is given in the question. Now that we have to proceed further, window is above 19.6 meters. So window की height हम यहाँ पे लिख लेते हैं. कितनी है? जो window होगी ऊपर, इसकी height कितनी है यहाँ पे? 19.6 meter. It is the height. So और कुछ क्वेश्चन में गिवन है और तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गिवन है. ओके, सो हमें इवन एंगल भी नहीं पता, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी हमें नहीं आइडिया है. ठीक, तो अब बात तो हम जानते हैं, ये थीटा होगा हमारा एंगल. ठीक, बात तो हमें पता ही है कि ऐसा पैराबोलिक बनता है, इस तरीके से ऐसा पाथ इसका बनेगा, और ये हमें आइडिया है. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, ओके, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है आपको सीधे से क्या मान लेना है? ये मान लेना है कि एक जो लड़का है इट इज स्टैंडिंग 39.2 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, इतना ये चीज गिवन था हमें, एंड थ्रोज अ बॉल व्हिच जस्ट पासेस थ्रू अ विंडो 19.6 मीटर अबव द ग्राउंड, पासेस थ्रू अ विंडो. अच्छा, विंडो से जब पास हो रहा होगा, कुछ सोचना, विंडो से जब पास हो रहा होगा, विंडो से पास हो रहा है तो ऑब्वियसली इस तरीके से उसका पाथ होगा ना, उस पॉइंट पे कुछ ऐसा पाथ होगा इसका, ऐसा एकदम ऐसे सीधा जा रहा होगा.
विंडो से जब पास होना है उसको, अगर विंडो से लिखा हुआ है विंडो से पास हो रहा है, यानी कि अगर विंडो के अंदर घुस के दीवार से भिड़ जाता, इसका मतलब कि अभी और ऊपर जा सकता था हमारा पत्थर, सॉरी हमारा बॉल, ठीक। बट क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है, यानी कि ये जो 19.6 मीटर पे विंडो थी जिससे कि हमारी बॉल पास हो जा रही है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट दैट दिस प्रोजेक्टाइल कुड अचीव, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो अब हमें पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट इतनी है। और आपको पता है एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद फिर उतना ही डिस्टेंस कवर करता है हमारा प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल के केस में, जितना कि उसने मैक्सिमम हाइट तक, जीरो से, इस पॉइंट से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर किया था 39.2 मीटर, उतना ही डिस्टेंस वो यहाँ से कुछ यहाँ तक करेगा जब वो ग्राउंड को टच करेगा हमारा प्रोजेक्टाइल। तो सपोज कर लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, और यहाँ पे हमारा जो बॉल है वो ग्राउंड को टच कर जा रहा है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी हो गई, 39.2 मीटर्स। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। हमको ये एज्यूम करना पड़ता है, एजम्पशन लेना पड़ता है। तो क्या दिमाग लगा हमारा, कॉन्सेप्चुअल तो सब कुछ ठीक था, हमारा दिमाग केवल एक यहाँ पे घूमा कि अगर विंडो से पास हो रहा है, इसका मतलब जो विंडो जिस हाइट पे है दैट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्शन, ठीक है। इस प्रोजेक्शन की वो मैक्सिमम हाइट है जो कि ये प्रोजेक्टाइल अचीव कर सकता है इस केस में। सो नाउ अब हमें क्या पता, इस तरह के और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। हमारा पाथ तो ऐसा बन जाएगा। अब हमें पता क्या क्या है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी ना, ठीक है, हमें वेलोसिटी निकाल लेंगे। हमें पता है मैक्सिमम हाइट एंड वी नो द रेंज, हमें रेंज के बारे में आइडिया हो गया। तो रेंज पता है, मैक्सिमम हाइट पता है, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, सोचिए और बताइए। एज सिंपल एज दैट, आप ये देखो, आपका मैक्सिमम हाइट कितना दिया हुआ, 19.6 मीटर, ओके। बहुत ही एक कोइंसिडेंटली देखना क्या होगा। और आपका जो रेंज है ये कितना है, 39.2 प्लस 39.2 इक्वल्स कितना हो गया, दिस बिकम्स आई थिंक 78.4, है ना, हाँ इतना ही तो होगा। दिस बिकम्स 78.4 मीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, ठीक है, मैं अगर भूल भी जाऊँ तो आप मत बोलना अपने कॉपी में, अदरवाइज दैट विल बी इनकम्प्लीट ना। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स हमने पढ़ा है, सो यूनिट्स को कितनी इंपॉर्टेंस है यूनिट्स की, ये तो हमने उस चैप्टर में जान ही लिया था। एंड सो अब हमें चलो देखो, आर की वैल्यू क्या होती है अगर हम इन टर्म्स ऑफ यू नो नॉर्मली ऐसे लिखें तो आर की एक्सप्रेशन क्या होता है, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अगर साइन 2 थीटा वाले को ना ले, अगर रेंज की हम बात करें, रेंज का एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है u का स्क्वायर, ठीक है, u का स्क्वायर 2 इंटू यू का स्क्वायर एंड साइन थीटा, ओके, साइन थीटा। आप बोलोगे साइन 2 थीटा होता है, मैं 2 थीटा को बाहर निकाल लिया, 2 थीटा को मैं एक्सपैंड कर दिया कॉस थीटा, ठीक, ओके, अपॉन क्या 2g की g, बताओ g होता है ना, ये चीज r होता है। अच्छा, अब h की वैल्यू क्या होती है, एक्सप्रेशन h का एक्सप्रेशन क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम हाइट का। अभी हम रेंज, क्योंकि हमें दो ही चीज पता है ना, रेंज और मैक्सिमम हाइट, इसकी मदद से हम कैसे निकालेंगे अपना वैल्यू ऑफ u, हम वहां तक जाएंगे। तो कैसे, h की वैल्यू क्या होती है हमारी, बताओ जल्दी। h की वैल्यू होती है, एक्सप्रेशन हमारा होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है ना भाई। नाउ
इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो h वाले को, और r को इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। सो डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, ठीक है, 2 by 1 यानी कि h अपॉन r, ओके। तो h अपॉन r से क्या आ जाएगा आपको, देखो h अपॉन r क्या आएगा एक्सप्रेशन, देखो यहीं से हम काट लेंगे, ठीक है। h ऊपर है r नीचे है, h ऊपर r नीचे, h ऊपर r नीचे। एक काम करते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा दोनों के लिए। h को यहाँ कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ये यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अब तुम लोग के लिए बहुत ही आसान हो गया। अब जल्दी से बता दो, h अपॉन r अगर हम करेंगे, करना चाहिए था मुझे वैसे r को नीचे, क्योंकि h अपॉन r पर है ना। इसको हटाओ, इसको करते हैं कॉपी और इसको करते हैं पेस्ट यहाँ पे। चलो इसको कट कर लो और इसको यहाँ पे कर दो पेस्ट, ठीक है। अब तो आराम से निकाल लोगे h अपॉन r। देखो u से u गया, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा एक चला गया, साइन थीटा ऊपर बचा, नीचे कॉस थीटा बचा, ओके। अब देखो g से g गया और 2 इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4, यहाँ से ये आ जाएगा h अपॉन r, क्या आ जाएगा 1/4, 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई, और बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, ठीक है, टैन थीटा। यहाँ से वी गॉट द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन दैट वी वांटेड। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। थीटा की वैल्यू निकालना भी जरूरी था। दाओ अब हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम अपने h अपॉन r को 1/4 tan थीटा होता है, सो हमारा tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दिस tan थीटा विल बी इक्वल टू, जो tan थीटा है दिस विल बी इक्वल टू, कैपिटल में नहीं होता स्मॉल में होता है, tan मैंने कैपिटल लिख दिया, सॉरी। दिस tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4h अपॉन r, 4h अपॉन r। तो x वैल्यू रख दो, 4 इंटू h की वैल्यू क्या है 19.6 अपॉन r 78.4, हो रही था ना, हाँ ठीक है। क्या आ रहा है बताओ जल्दी से। ये पता है क्या आता है, सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हमेशा कैलकुलेशन इजी ही देगा। तो 4 इंटू 19.6 इंटू 4 होता है 78.4, तो 78.4 डिवाइडेड बाय 78.4 बिकम्स 1। और tan थीटा कब 1 होता है, tan थीटा 1 होता है जब एंगल आपका 45 डिग्री होगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो थीटा की वैल्यू आ गई, दिस इज 45 डिग्री आ गई। अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो थीटा आया, अब यहाँ से हम आगे कैसे बढ़े। तो बहुत ही सिंपल है आगे बढ़ने का एक सिंपल सा तरीका, कि आपको निकालना था यू निकालना है, थीटा आपने निकाल लिया, बड़े ही चालाकी से आपने एंगल की वैल्यू निकाल ली। अब आप लगा दो रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है हमारा r इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, यू का स्क्वायर तो होता ही है रेंज में, देखो सामने, ठीक है, 2u का स्क्वायर, 2u का स्क्वायर, 2 हटा दो, साइन 2 थीटा डायरेक्ट लिखेंगे, हमको तो थीटा की वैल्यू पता ही चल गई, अब तो थीटा थोड़ी निकालना है। तो u का स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही है, ठीक है। u का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब सबकी वैल्यू आपको पता है, बस सिर्फ और सिर्फ
रखना है। सो आर की वैल्यू क्या है, 78.4 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू यू का स्क्वायर जो कि हमको निकालना है, प्लस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 45 है तो 2 इंटू 45 दैट इज 90, तो साइन 90, साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1, हटा दिया हमने, लो ठीक है, साइन 91 होता है, अपॉन में जी, अपॉन में 9.8। ओके, तो ये 9.8 से 78.4 पूरा कट जाएगा, सिंपल सिंपल कटेगा, कितने में टाइम्स में कटेगा, एक्चुअली कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होना है यहाँ पे। सो ये हमारा u का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 9.8 इंटू 78.4, ठीक है। ये होगा आपका 70 अंडर रूट में लिख लो, रूट मतलब ये तो ऑब्वियसली 78.4 मल्टीप्लाई बाय 19 नहीं 9.8 है ना, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो हमारा इसका अंडर रूट यानी कि u की वैल्यू जो आती है वो आती है 19.6 रूट 2, ठीक है। ये सब तो कैलकुलेशन के ऊपर है, तो फिजिक्स इतनी में ख़त्म हो गई थी हमारी, तो हमने बहुत दिमाग लगाया इसमें तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि हमारे चैप्टर का एंडिंग टॉपिक होगा। वो थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो उसमें कई सारी चीज़ें हम जानेंगे। पहले हमें तो प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, पूरे क्लास 11 फिजिक्स का। ये सारी चीज़ें आएंगी तब जाके हम फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी बड़ा है, ठीक। सिंस अब हम थोड़ा सा स्पीड में ही चलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वी हैव ओनली 3 क्लासेस इन अ वीक। सो 3 क्लासेस इन अ वीक स्टार्टिंग में सिर्फ 2 ही थी, तो धीरे धीरे कोर्स हमारा लैग होता गया, ठीक। एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट यू हैव 1 क्लास लेस इन फिजिक्स एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस। सो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। एंड देखो, आप लोग को अगर ये चीज़ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो चीज़ ऑब्वियसली क्लियर होगी, एक बार में नहीं होगी, दोबारा देखो उस चीज़ को, दोबारा देखो, क्लियर होगी, अगर मन लगाओगे पढ़ोगे ना क्लियर तो होगी ही। और जो लोग स्टार्टिंग से लाइव क्लास में बने थे मेरे साथ, तो उनको आराम से चैप्टर 1, 2 एंड 3 बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। दिस इज चैप्टर 4। सो और जो नहीं थे वो नहीं है, कुछ लोग के दिमाग में अलग ही फितूर होता है, तो उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। सो जो थे वो पढ़ रहे थे, जो नहीं थे वो बाहर में जाए, मुझे मतलब नहीं। एंड चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। चलो लेट्स try to solve some question that is related to real life. Like a hunter aims his gun and fires a bullet directly at a monkey that was sitting on a tree. Okay? At the instant, the bullet leaves the barrel. जिस instant पे bullet ने गन के बैरल को छोड़ा, ठीक है, वैसे ही मंकी गिर गया। क्यों? क्योंकि आवाज आई होगी ना, तुरंत मंकी गिरा। तो आपको बताना है क्या बुलेट ने मंकी को हिट किया होगा, और एक्सप्लेन करना है आपको प्रॉपर रीजनिंग के साथ। ओके, सपोज मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए हैं। ओके, सपोज दिस इज पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है हमारा, यहाँ से बुलेट हमारी गन फायर करा गया, ठीक है, यहाँ से। तो हमारा जो एम है, वो जो इनिशियल वेलोसिटी जो कि गन की होगी, वो एकदम पॉइंट कर रही है मंकी के हेड की तरफ, कर रही है नहीं कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ठीक। तो उसका हमारा ऑब्वियसली हम प्रोजेक्टाइल के अकॉर्डिंग एक हॉरिजॉन्टल एंड एक वर्टिकल कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। सपोज करो दिस इज यू, ठीक है, एंड व्हाट इज यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, यू ऑलरेडी नो दैट, तो आई डोंट हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन। ओके, सो नाउ अगर हम इसको प्रोड्यूस करें फर्दर,
तो ये M तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और ऐसा बना लेते हैं जिससे कि ये बिल्कुल ऐसा दिखे कि सच में ये M के पास ही जा रहा था, ऐसा, ठीक है। तो उसको नहीं रखते हैं, तो एक अलग से लाइन बनाते हैं जिससे कि हमको अब पता चले कि ये जो है जा रहा था। ब्लू से बनाते हैं इसको कि मतलब ऐसा मंकी तो टच करेगा ये इस तरीके से, ओके। बट एक्चुअल पाथ तो प्रोजेक्टाइल का कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो एक्चुअल पाथ कैसा होगा उसका, इस तरीके से कुछ ऐसा बेंड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर पेन से बनाऊँ तो कुछ एक्चुअल तो उसका ऐसा होगा, वैसे जाएगा, बट ऐसा इस तरीके से होगा ना, जो बुलेट का पाथ होगा। ये एक्चुअल पाथ तो ऐसा होगा। अब और क्या चीज़ हमें देखनी है इसमें, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा कौन सा, वो तो आपको पता ही है। सपोज करो वो वहाँ मंकी बैठा है और ये पॉइंट इसका एक्चुअल पाथ है, तो उसको हम ए नाम दे देते हैं। फिर हम रीजनिंग पे आते हैं इसकी, पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को और डायग्रामेटिकली इसको बना लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, उसको भी नेमिंग कर देते हैं, छोड़े क्यों। दिस इज वाई एक्सिस, सो इसको भी छोड़ना नहीं है। एंड और ओके हमारी हॉरिजॉन्टल, अगर हम रेंज मतलब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अभी तक की, तो दिस इज आवर एक्स डिस्टेंस, स्मॉल एक्स, ये हमारी स्मॉल एक्स डिस्टेंस है। एंड व्हाट इज दिस, इट इज यू। अगर ये हमारा थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है, सपोज कर लो ये हमारा थीटा एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस एंगल इज थीटा। तो हमारा जो ये वाला है ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, एंड यू साइन थीटा कौन सा है, यू ऑलरेडी नो, जो बचा वो यू साइन थीटा हो गया, यू कॉस थीटा, और ये हमारा यू साइन थीटा हो जाएगा, यू साइन थीटा। मैं एक में लिख रहा हूँ, यू नो व्हाट आई मीन, राइट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझना है, बाकी नखरेबाजी नहीं करनी। चलो अब ये सारी चीज़ें हमें पता हो गई ना। अब हम अपनी रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं, कैसे हम बताएंगे अपने, कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेसिकली। तो जैसा कि फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, जो गन है वो पॉइंट ओ पे है, ठीक। ओ से ही गन का ऑब्वियसली मुंह है। मैं गन भी बना दूं क्या, इसे बनाने की जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी एक रफ मैं एक से दिखा देता हूँ कि आपको ये दिस इज, ये हमारे गन का जो कहते हैं ना आगे का हिस्सा है, यहाँ से बुलेट फायर हुई होगी कुछ इस तरीके से, बहुत ही गंदी गन, ओके। ऐसा कुछ होगा उसका ट्रिगर, ये हैंडल जो, ठीक है। बेसिकली हमारा ये एक गन है, ओके। ये गन है, इससे बुलेट फायर हुई, ठीक। ये पूरा हमारा सिचुएशन है। सो वी कैन से दैट द गन एट ओ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मंकी एट पोजीशन M। दिख रहा है M फॉर मंकी, तो पोजीशन जो मंकी की वो हमने M ले ली है जानबूझकर। सपोज करो कि बुलेट जैसे ही रीफ छोड़ेगी बैरल, गन के बैरल को, विथ वेलोसिटी u, ठीक, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, जो कि साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक है। बुलेट ने छोड़ दिया गन के बैरल को विथ वेलोसिटी u, जो कि डायरेक्टेड है M के तरफ, और एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा का एंगल है। इज इट क्लियर, ठीक। अब जो है, लेट द बुलेट क्रॉस द वर्टिकल लाइन MB आफ्टर A, ठीक है। लेट द बुलेट, देखो अब आप सोच रहे हो कि B कहाँ पे है, तो देखो B ये वाली लाइन है यहाँ पे, दिस वन इज B, ये वाला। मैंने इसको नाम नहीं दिया, उसका नाम हम B दे देते हैं, ओके, ठीक। तो क्या बोला मैंने लाइन, लेट द बुलेट क्रॉस द वर्टिकल लाइन, लेट द बुलेट क्रॉस द वर्टिकल लाइन MB एट A आफ्टर टाइम स्मॉल t, ठीक, समझ रहे हो। लेट द बुलेट क्रॉस द वर्टिकल लाइन MB, वर्टिकल लाइन MB कौन सी है, ये वाली, ठीक है।
तो एम बी कब क्रॉस कर रही है ये बुलेट? आफ्टर टाइम। एम बी बुलेट, जो एम बी वाला पाथ है, ये बुलेट ए पे पहुंच रही है एट टाइम टी। समझ रहे हो मेरी बात? लेट द बुलेट क्रॉस द वर्टिकल लाइन एम बी एट ए आफ्टर टाइम स्मॉल टी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम किस तरीके से निकाल लेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें निकालना है, इसकी रीजनिंग बतानी है होगा क्या। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? ओ बी है ना, देखो एक्स है ना, ओ बी, ओ बी ये किसके बराबर है? ये है x के बराबर, एंड ये किसके बराबर होगा? u cos थीटा इंटू टाइम। सिंपल सी बात है ना, u cos थीटा इंटू टाइम, जो पहले करते आ रहे थे, u cos थीटा इंटू टाइम स्मॉल टी। ठीक, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा। नाउ टाइम यहां से क्या निकल आया? टाइम क्या निकला? टाइम विल इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, राइट? Let this be equation number 1. Let's suppose this is equation number 1. Assume that. Secondly हमें क्या करना है? ठीक, अब O से B तक के मोशन के लिए वर्टिकल रेंज कितना है हमारा? O से B तक के मोशन के लिए हमारा वर्टिकल रेंज कितना है? बता दो जल्दी, कितना है हमारा वर्टिकल? जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, जैसे वर्टिकल रेंज कितना है भाई? ए बी, वर्टिकल रेंज कितना है? ए बी, ये वाली डिस्टेंस। तो वर्टिकल रेंज इज इक्वल टू ए बी। ए बी इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा ए बी? ए बी विल बी, हम निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ओके, दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप वर्टिकल की बात कर रहे हो तो इसमें एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ, राइट? ये तो हमें पता ही है। और अगर वर्टिकल वेलोसिटी की हम बात करें तो उसमें u साइन थीटा आएगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा u साइन थीटा, ठीक है? प्रीवियस सारी वीडियोस देख के तब इस वीडियो को ही देखना, वरना कोई मतलब नहीं है। बस मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, बट कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे। नाउ u साइन थीटा इनटू टाइम माइनस, कहाँ से माइनस आया मैंने ऑलरेडी बता दिया, हाफ जी, फिर t का स्क्वायर। अब t की वैल्यू रखते हैं t की जगह पे, तो t को हटाते हैं, t की वैल्यू होती है, t की वैल्यू क्या है? x अपॉन यू कॉस थीटा। तो x अपॉन यू कॉस थीटा, वहां पे भी यही कर देते हैं, x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, वहां पे इसको कॉपी, यहाँ पे टी स्क्वायर की जगह यहाँ पे इसको रख के g, इसको रख के कर देते हैं होल स्क्वायर, ठीक? इसका एंड इसका होल स्क्वायर, परफेक्ट, राइट? नाउ अगेन मूविंग फर्दर, हम देखेंगे हमारा एक्सप्रेशन कैसा चेंज हो रहा है, ठीक है? हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से चेंज होगा कि u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विल बिकम tan थीटा, तो x tan थीटा, this AB will be equal to x tan theta, as we have already calculated that, and minus of इसमें क्या बचेगा? माइनस, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, हाँ तो कैंसिल हो गया, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर ओनली, ठीक है? सो माइनस जी टी का स्क्वायर,
इसको यहाँ पे टी ही रहने दो, ठीक है, इसको यहाँ पे टी ही रहने देते हैं, टी का स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली हम उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। हाफ जी टी का स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे भी ऐसे ही रखते हैं, हाफ जी टी का स्क्वायर। अभी आपको पता चलेगा क्यों मैंने ऐसे किया। ओके, सो नाउ दैट वी नो कि जो हमारा एम बी है, एम बी इज इक्वल टू एम ए प्लस ए बी, है कि नहीं है ना। जो एम बी है इज इक्वल टू ये है ना, और इसको हम अगर एम ए की वैल्यू निकालना चाहें, एम ए दिस विल बी इक्वल टू एम बी माइनस ए बी, राइट। कुछ इसमें अलग तो है नहीं, वही क्या हमने। अब एम बी क्या है, एम बी हमने निकाला है ऑलरेडी, क्या है एम बी की वैल्यू बताओ। दिस विल बी इक्वल टू एम बी क्या है बताओ, एम बी इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, है कि नहीं है। सिंपल देखो, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 और इसका यूज करके क्या है, एम बी इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, है ना। कौन से ट्रायंगल से पता चला हमें, देखो एम बी की अगर हम वैल्यू निकालें तो एक्स टेन थीटा ही तो है। ट्रिग्नोमेट्री लगा लो ना सिंपल इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ एम बी में, ठीक है। सो वहां से हमें क्या निकला, एम बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स टेन थीटा। ओके, ये प्रूफ करने का क्वेश्चन है, सो इसीलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट में हमें घुसना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। माइनस ए बी की वैल्यू क्या है, अभी हमने निकाली है ए बी की वैल्यू, है ना, क्या है, एक्स टेन थीटा, आगे एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा एंड माइनस, तो इसको हम पूरा ब्रैकेट में करते हैं, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। इज इट क्लियर? That's already clear. Now that we have this much thing, यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये माइनस है, ये माइनस है, यानी कि एक्स टेन थीटा एंड एक्स टेन थीटा ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, हाफ जी टी का स्क्वायर, यही बचेगा। हमें बताना क्या था कि विल द बुलेट हिट द मंकी या नहीं, क्या बुलेट हमारी मंकी को हिट करेगी या नहीं करेगी। ओके, सो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, यानी कि thus in time t the bullet passes through A। अगर दिमाग में आ रहा है कि मंकी का हमने सॉल्यूशन कैसे किया, तो उसको भी निकाल लो यार, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस फॉर मंकी, मुझे लगा आप लोग ऐसे समझ जाओगे, बट मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई बात नहीं, सब पुराने ही चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे वर्टिकल के लिए, याद करो वर्टिकल के लिए हमारी जो ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता था, हम यूज़ करते थे वो वाला इक्वेशन, करते थे कि नहीं करते थे। तो वहाँ पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल के केस में क्या मानते थे हम, 0, है ना, 0 प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। समझ रहे हो आप जी टी का स्क्वायर, ये बात तो आप लोग को क्लियर हो रही होगी ना। सो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकल गया है कि ये भी हमारा हाफ जी टी स्क्वायर आ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस जो एम ए है, ये बुलेट के लिए हमने कैलकुलेट किया था, वो भी हाफ जी टी का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैंने करके नहीं दिखाई थी इसीलिए क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पुरानी चीज़ है, तो आप लोग को इतना दिमाग चल जाना चाहिए था। खैर अब मैंने कर दिया है, तो तुम लोग को अब ये चीज़ बिल्कुल ही दिमाग में बैठ गई होगी कि क्यों किया। हमने एक बार बुलेट के लिए कैलकुलेट किया, देन हमने मंकी के लिए वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करी, और ये देखा कि आफ्टर टाइम टी ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी कि ये दोनों एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। इसका मतलब कि बुलेट हमेशा मंकी को हिट करेगी ही करेगी। इज इट क्लियर? ओके, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द मंकी मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, बट मैंने बता दिया था आप लोगों को, बोल दिया था कि किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।
प्रोजेक्टाइल आप नॉर्मल पढ़ चुके हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एंड ये सब, तो इतना तो ऑब्वियस है कि आपका क्वेश्चन आ ही जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे तो करने को बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट आप लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करो अपने से, तभी एक अप्रोच मिलेगा क्वेश्चन को। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, मैं एग्जाम में थोड़े से अच्छे ही क्वेश्चंस दूंगा ताकि उसमें ब्रेन का ज़्यादा यूजेज हो आप लोगों का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, इसमें हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व किया जा सकता है, तो आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भेज दूंगा आप लोगों को ज़रूर से। आप लोग रेफरेंस बुक फॉलो करिए एंड try to solve as many questions as you can. So that's all for today, and make sure you like this video or subscribe to this channel for more content like this. And I hope सब कुछ तुम लोगों को अभी तक जो भी बताया गया है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं और दोबारा वीडियो देख सकते हो, ये तुम लोगों के पास प्रिविलेज है कि फिर से रिवाइंड करके देख लो। जब भी देखना हो देखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखो। ओके ओके। और बाकी जो जिनके पास ज़्यादा दिमाग है वो लोग भाई बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो बॉर्न ही इंटेलिजेंट है, तो क्या ही बोला जाए उनके बारे में। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।